தர முடியுமா? क्या मुझे चंगाई देना तुम्हारा परमेश्वर कर सकता है क्या? நான் நம்பின தெய்வமே கைவிட்டுடுச்சு. अरे मैं जिस पर भरोसा रखती हूँ देवताओं ने भी मुझे छोड़ दिया. நான் எவ்வளவு பூஜை பண்ணேன், मैंने कितनी सारी पूजा की, எவ்வளவு விரதம் இருந்தேன், इतने सारे मैंने ஆச்சா किया தெய்வங்களே என்னை கைவிட்டு और वही देवताओं ने मुझे छोड़ दिया. அவங்க தெய்வத்தை வணங்கினது இல்லை, लेकिन मैंने तो तुम्हारे देवता को पूजा भी नहीं, நம்பினது இல்லை. तुम्हारे देवता पर मैं विश्वास भी नहीं करती. நம்பாத தெய்வம் என்னை எப்படி तो சுகமா? भरोसा भी नहीं करती, विश्वास भी नहीं करती, पूजा भी नहीं करती, ऐसा देवता ऐसा तुम्हारा हो क्या मुझे बचाएगा? கேள்விதான் அவர் கேட்டார். ऐसा मेरे पत्नी ने प्रश्न पूछा. ஊழியக்காரர் சொன்னவார், उसके जवाब में उस दास ने कहा, கர்த்தர் मेरा परमेश्वर வாக்கு பண்ணினார், अगर वायदा करता है வாக்கு மாறாது. तो वायदे से बदलता नहीं है, வாக்கு மாறாதவர், वो वायदा बदलता नहीं है. குணமாக்குவேன் என்று சொன்னார். चंगाई करूंगा ऐसे कहा और आपको वो चंगाई देगा, वो कभी बदलेगा नहीं. ஆனா நீ ஒண்ணு செய்யணும். लेकिन एक बात तुझे करना என்ன है. செய்யணும் தெரியுமா? क्या करना है मालूम है? நீங்க என்ன சொல்லுங்க आप தெரியுமா? ही बताओ, जिनको मालूम है बताओ. என்ன நீங்க அவர் சொன்னது நடக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? और अब जो परमेश्वर कहता है अगर वो होना है तो उसलिए हम क्या करना है? என்ன சொல்றாங்க? विश्वास. யாருக்கு தான் விசுவாசம் இல்லை? अरे किसको विश्वास नहीं है? யாருக்கு தான் இல்லை? अरे किसको नहीं है? किसके அங்கிருந்து வர்றது கூட்டத்துக்கு வர்றது எதுக்கு தெரியுமா? सभा में कैसे आते हैं मालूम है? இங்க வந்தா நமக்கு சுகமாயிடும் தான் வருவாங்க. अरे यहाँ पर आए, यहाँ तक चंगा हो जाऊंगा करके सोच कर आए. ஜபமும் பண்ணிக்குவாங்க, प्रार्थना भी कर लिया, வெளியில போற வரைக்கும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சொல்லிக்குவாங்க. बाहर तक जाने तक स्तुति स्तुति बोलते हैं. அப்புறம் அங்க வழியில போகும்போது எத்தனையோ இருக்கு. और उसके बाद रास्ते पर कुछ और ही हो जाता है. अरे रास्ते पर दूसरा कुछ दिखता है, उनके सामने ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं. சுகமாகுமா? क्या आपको चंगाई होना है? யாரெல்லாம் இயேசு ஏத்துக்கிறீங்க? कौन कौन यीशु को ग्रहण करते हैं? எத்தனை பேர் ஏத்துக்கிறீங்க? கை தூக்குங்க. कितने लोग ग्रहण करते हैं? आप இதுல बताओ. மட்டும் ஒரு குறைச்சலே கிடையாது, இதுல மட்டும் குறைச்சலே கிடையாது. और इसका कोई कमी नहीं है. யாரு கேட்டாலும் கை தூக்க வேண்டும். कोई भी बोले तो खुदा तुरंत हाथ उठाते हैं. யாரு கேட்டாலும் கை தூக்க வேண்டும். कोई भी कुछ बोले तो सीधा हाथ उठाते हैं. யாரு கேட்டாலும் कोई भी कुछ भी अगर कहें, எத்தனை முறை தான் கை தூக்குவீங்க? कितनी बार आप हाथ उठाओगे? அப்ப நேத்தெல்லாம் ஏத்துக்கலையா? यानी कल के दिन आपने यीशु को நான் ग्रहण தெரியாம नहीं தான் किया. கேட்கிறேன். कल அப்ப நேத்து ஏத்துக்கலையா நீங்க? कल क्या आपने यीशु को ग्रहण नहीं அப்ப किया? இன்னைக்கு தான் கை தூக்குறீங்க. यानी आज ही आप हाथ उठाते हो. ऐसा कौन है? எனக்கு அநியாயமா இருக்கு. என்ன அநியாயம் சொல்லுங்க. कितना अन्याय है ये. இப்ப கை தூக்குறதுல எத்தனை பேர் ஞானஸ்நானம் எடுத்தோம்? अभी हाथ उठाने वाले कितने जनों ने बपतिस्मा लिया है? கை தூக்கணவங்கள எத்தனை பேர் ஞானஸ்நானம் எடுத்தோம்? जिन्होंने हाथ उठाया उनमें से कितने जो लोगों ने बपतिस्मा लिया? அப்ப இன்னைக்கு தானே ஏத்துக்கிட்டீங்க. यानी आज ही आपने यीशु को ग्रहण किया அப்ப क्या? நாளைக்கு தானே ஞானஸ்நானம் यानी எடுக்கணும். कल ही आप बपतिस्मा लेना है. இதுக்கு முன்னால எப்படி ஞானஸ்நானம் तो इसके எடுத்தீங்க? पहले कैसे आपने बपतिस्मा लिया? அப்ப நாளைக்கு ஒரு ஞானஸ்நானம் கொடுத்துடலாமா? यानी क्या कल आपको சரி, बपतिस्मा எத்தனை पहले? பேர் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிற நாளைக்கு கொடுக்க போற ஞானஸ்நானம் लेकिन कितने எடுக்கிறது? जन कल बपतिस्मा लेंगे? कितने बपतिस्मा लेंगे? வந்தது ஒரு 20, 30, 50 பேருக்கு ஒரு ஞானஸ்நானத்தை கூட்டு போயிடும். अरे आया भी वो तो 20-30 लोगों को बपतिस्मा दे देता எத்தனை हूँ. ஞானஸ்நானம் कितने जन எடுத்து बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है? உஷாரா. अरे आप होशियार हो गए यार. அப்ப கூட 3 பேர் இருக்காங்க. और तभी भी 2-3 जन है. இதுக்கு முன்னால ஞானஸ்நானம் எடுத்துட்டீங்களா? बपतिस्मा लिया आपने पहला? எடுத்தவங்கள எடுக்காதவங்கள? लिया क्या? नहीं लिया. எடுக்காதவங்கள கடைசியில நான் கேட்பேன். अगर नहीं लिया तो आपको धन्यवाद. நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா, मैं क्यों ऐसा बोल இன்னைக்கு रहा हूँ? அப்படிதான் என்ன சொல்லுகிறோம் என்று தெரியாமல், आज ऐसा ही क्या हम बोल रहे हैं वो भी என்ன पता नहीं. செய்கிறோம் என்று क्या தெரியாமல் कर रहे हैं उसका भी पता नहीं है. அவர்கள் இப்படி வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளுகிறார். क्योंकि जीवन को ऐसा ही ढाल लिया है. வேதம் சொல்லுகிறது. वचन कहता है. मैं कुकुमपुर पुलिस का और मैं ये टीका लगाने वाला पुलिस और और 3 अशुद्धात्मा इसके पास, 13 ஆவி வச்சிருந்தா, 13 अशुद्धात्मा इसके பெரிய अंदर, சக்தி படைச்சவனா. और एक बड़ी शक्ति इसके पास. நான் இப்ப நினைச்சேன்னா பிசாசு ஓடு தெரியுமா? और किसको देखकर अशुद्धात्मा நான் भागता है? சொன்னா பிசாசு ஆடு தெரியுமா? अरे मालूम है मैं बोलता हूं तो शैतान हिलता है. ஆடுமா ஆடா, क्या हिलेगा या नहीं हिलेगा? ஓடுமா ஓடாது, भागेगा कि नहीं भागेगा? ஓடுன்றவங்களா கைது, भागेगा ऐसा बोलने वाले हाथ उठाओ. ஓடுன்றவங்களா கைது கட்டு. शैतान भागेगा मैं बोलूंगा तो शैतान भाग जाएगा ऐसा बोलने वाले हाथ उठाओ. அது என்ன பார்த்து சொல்லுவான், अब वो मुझे देखकर कहेगा, ஏ அன்பு சொல்லுவான், ये अनबसलवन, ஒன்னு எனக்கு தெரியும், और मैं तुझे जानता हूं. என்ன
நீ வச்சிருந்த குதிச்சாத்தனி எனக்கு தெரியும். तेरे पास जो अशुद्धात्मा நீ है उसको भी வச்சிருந்த भेजा। ஆவியையும் தெரியும். तेरे पास जो आत्मा है वो எனக்கு भी भेजा। எல்லாமே தெரியும்டா. मुझे सब कुछ मालूम है रे। நீ என்னடா என்ன போ சொல்றது? वो क्या मुझे क्या बोल रहा है? இப்படிதான் சொல்லும். ऐसा ही वो अशुद्धात्मा बोलेगा। ரொம்ப போட்டு போலீஸ் கலச்சன ஓடாது. और कुकू डालने वाले पुलिस वाला बोल रहा हूँ ऐसा बोलेगा तो नहीं बोलेगा। சொன்னாதான் ஓடும். लेकिन जिसके नाम से बोलूंगा तब वो भागेगा। இருந்தாதான் போடும். यीशु का नाम लेके वो भी भागेगा। நாமத்துக்கு மாத்திரம் केवल यीशु के नाम में ही केवल अशुद्ध आत्मा थरथराते हैं। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யாருடைய நாமத்துக்கு? जिसके नाम से थरथराते हैं, இயேசு என்ற நாமத்துக்கு தான். यीशु के नाम से थरथराते हैं। தூக்கப்பட்டு போலீஸ்கார நாமத்தினாலே நான் உன்னை துரத்துகிறேன். ஓடு. टीका लगाने वाला जो पुलिस वाला उसके नाम से मुझे मैं तुझे भगाता हूँ, भाग। जाएगा जाएगा जाएगा। कुछ बड़ी नीति क्यों? अरे उठाकर तो वो पटक देगा कुछ। क्यों बना? நான் சொல்றேன். मैं कहता हूँ குங்குமப்பட்டு போலீஸ்காரன் சொல்றேன். और कुकू लगाने वाला जो टीका लगाने वाला पुलिस वाला मैं बोलता हूँ, தெரியுமா? और मेरे पास कौन सी शक्ति है நான் मालूम है? பிரசங்கம் பண்ணா என்ன நடக்கும் मैं தெரியுமா? प्रचार करूंगा तो क्या होगा मालूम है? இயேசு நாமத்தினாலே இந்த நோய் குணமாகி போகணும். और இயேசு நாமத்தில் यीशु के नाम से बीमारी दूर हो जाए, அப்படி சொன்ன नोய் போயிடுமா? ऐसा बोलेगा तो क्या अशुद्ध में जाएगा? बीमारी जाएगी। என்ன கொஞ்சம் ஆட்டம் போடு. எழுதிக்கிட்ட ஆட்டம் போடு. और मैं जरा और भी नचाना है, जरा और भी दिखाना है। பாவம் 6 மாசம் இருக்க போறது 6 நாள்லயே போய் சேரும். बेचारा 6 महीने में जो जाने वाला 6 दिन में ही चले जाएगा। என்ன காரணம்? என்ன காரணம்? क्या कारण? சொல்லுங்களேன். बोलिए। இயேசு என்ற நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் இந்த பூமியில கொடுக்கப்படலாம். और यीशु के नाम के अलावा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। நாமம் தான் தெரியும். और वो इतना महान नाम है, और जिस प्रकार से उस नाम को बोला, उस रीति से बोला, उसके नाम से। ஆனால் लेकिन அந்த நாமமும் கிரியை செய்யாத நேரம் இருக்கு. वो नाम भी काम नहीं कर पाएगा, ऐसा समय आ रहा है। இயேசுன்னு சொன்னா குணமாகும். यीशु बोलेगा तो यीशु के नाम से बोलेंगे तो चंगाई होगी। ஆனால் அந்த இயேசு நாமத்தில் சொன்னாலும் கிரியை செய்யாத நேரம் இருக்கு. लेकिन यीशु के नाम से भी बोलेंगे तभी भी काम नहीं होगा, ऐसा समय आने वाला है। தெரியுமா? वो कौन सा समय मालूम है? நீ விசுவாசிக்கலனா உனக்கு அது கிரியை. अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो वो नाम आपके लिए काम नहीं करेगा। நீ விசுவாசிக்கணும். आप विश्वास करना है, உண்மையா இயேசுவை விசுவாசிக்கணும். सच्चाई से यीशु पर विश्वास करना है। வேதத்திலே நீங்கள் பார்க்கலாம். संसार में आप देख सकते हो, அது எங்கேயுமே वहां पर कहीं पर நான் சொல்றேன் விசுவாசி ஓடு அப்படின்னு இயேசு சொல்லல. देखो, मैं बाइबल में कहीं पर आप देखो यीशु को कहता मैं बोलता हूँ चल निकाल, ऐसा यीशु ने नहीं कहा। சரிப்பா நீ என்கிட்ட வந்துட்டல, ठीक है तू मेरे पास आ गया ना, சரி போ चल बीमारी निकल, என்கிட்ட வந்தா போயிடு अरे मेरे पास आया बीमारी निकल, அப்படி சொல்லல. ऐसा यीशु ने नहीं कहा। நீ என்ன தொட்டியாவா? अरे क्या तूने मुझे छुआ, தொட்டதுனால நீ சுகமாயிட்ட போ. मैं छूने की वजह से तू चंगाई पाइए जा, இப்படி அவர் எங்கேயும் சொல்லல. ऐसा कहीं पर यीशु ने नहीं कहा। எல்லா இடத்துலயுமே சொன்ன सारे स्थानों में यीशु ने ये बात कही, விசுவாசமே உன்னை ரட்சித்தது. तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, விசுவாசமே உன்னை तेरे ரட்சித்தது. विश्वास ने तेरा उद्धार किया, விசுவாசமே உன்னை ரட்சித்தது. तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया। எல்லாம் கூடும். जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। விசுவாசமே முக்கியம். विश्वास ही बहुत ही जरूरी बात है। இயேசுவினுடைய கிரியைகள் நடக்க வேண்டும் என்று यीशु சொன்னார். के काम अगर होना है तो, நான் போகிற இடங்கள் அப்படித்தான் சொல்லுவேன். और मैं जहां कहीं जाता हूं ऐसा ही बोलता हूं। விசுவாசத்தின் அளவு எதுவோ विश्वास का जो हिसाब आपके पास है அதுதான் கர்த்தருடைய கிரியையின் அளவா இருக்கும். वो ही परमेश्वर के काम का हिसाब होगा। கொஞ்சமா விசுவாசிச்சுனா अगर आप थोड़ा विश्वास करोगे तो கொஞ்சமா தான் நடக்கும். आपके लिए थोड़ा ही काम होगा। முழுவதுமாய் விசுவாசித்தா पूर्णता से आप विश्वास करोगे, முழுவதுமாய் நடக்கும். पूर्णता से आपके लिए काम होगा, அதுதான் விசுவாசத்தின் அளவு. और वही विश्वास का स्तर பெருக है। வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொன்னார். பெருக வேண்டும் என்று और சொன்னார். ये विश्वास बढ़ना चाहिए, ऐसा परमेश्वर ने कहा। அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? परमेश्वर ने क्या कहा? உன் விசுவாசம் பெருகட்டும், तुम्हारा विश्वास और बढ़ने दो, குறைய கூடாது. बिल्कुल कम नहीं होना है। விசுவாசத்திலே உறுதியாயிருங்கள். विश्वास में दृढ़ बने रहो, விசுவாசத்திலே நீங்கள் தைரியமாயிருங்கள். विश्वास में हिम्मत बांधे रहो। விசுவாசத்தினாலதான் विश्वास के द्वारा ही சகலமும் நடக்கும். सारी बातें होगी। அன்னைக்கு என் மனைவி சொன்னார், तब मेरी पत्नी ने कहा எல்லா தெய்வமும் எனக்கு अरे கைவிட்டு सारे देवताओं ने तो मुझे छोड़ दिया, இன்னைக்கு நான் செத்த நாளைக்கு எனக்கு आज तो मेरे मरने का दिन है। அப்படி சாக போகிற எனக்கு ऐसे சகோதரி கொண்டு போய் தேங்காய் और எண்ணெயும் वो बहन ने जो नारियल का तेल और पानी लाया था தண்ணியில எண்ணெயை ஊத்தி और पानी में तेल डालकर ஜெபம் பண்ணினார். प्रार्थना की, அவர் சொன்னார், और उसने कहा அம்மா हे बहन, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ये यीशु मसीह का लहू है இது உன்னுடைய வியாதிகளை और குணமாக்கும். ये तेरी बीमारी को चंगा कर देगा, குடி என்று சொன்னார். इसे पी ले, ऐसा என் कहा। மனைவிக்கு ஒன்றும் मेरी தெரியாது. पत्नी को तो कुछ मालूम ही ஆனால் नहीं, அந்த ஊழியக்காரருடைய வார்த்தையை அப்படியே கேட்டார். लेकिन सेवक की बातों पर ऐसा ही उसने माना பயபக்தியோடு வாங்கி குடித்தார்.
குடித்தார். बहुत ही भक्ति के साथ उसने लेकर उसने அதை पिया குடித்த உடனே और उससे पीते ही இந்த ஊழியக்காரர் தலையிலே கை வைத்து और इस सेवक ने सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की ஜெபித்த பொழுது और जब उस सेवक ने प्रार्थना की வல்லமை இறங்கி एक सामर्थ उतर आया, ரத்த வல்லமை एक இறங்கி अद्भुत सामर्थ उतर आया, அவளுக்குள்ளே பெரிய வல்லமை இறங்கி उसके अंदर बड़ा सामर्थ उतर आया அந்த கர்ப்பப்பையின் கிட்னியும் அழுகி போயிருந்தது. और जो गर्भ की थैली और किडनी खराब हो गई थी, எந்த வழியாக ரத்தமும் சீடுமாய் புறப்பட்டதோ, जिस रास्ते से जो लहू सड़कर निकल रहा எந்த था, வயிற்றை தொட முடியாமல் வேதனை நிரம்பி இருந்ததோ, जिस पेट को छू नहीं सकता था, அந்த இடத்தில் அந்த வல்லமை போய் பட்டது. और उस स्थान पर जो है सामर्थ्य அடுத்த நிமிடமே दूसरे ही क्षण துள்ளி குதித்து और वो उठकर कूदने लगी துள்ளி குதித்து और उठकर कूदने लगी அவருடைய கர்ப்பப்பையும் கிட்னியும் புதிதாக மாற்றப்பட்டது. और उसकी गर्भ की थैली और किडनी नई हो गई और उसकी गर्भ की थैली और किडनी नई हो गई. प्रिय लोगों, மருத்துவர்கள் கைவிட்டார்கள். डॉक्टर लोगों ने छोड़ दिया, நான் வணங்கின அத்தனை தெய்வங்களும் கைவிட்டது. मेरी पत्नी के सारे देवताओं ने छोड़ दिया, 13 ஆதிகள் கைவிட்டது. 13 अशुद्ध आत्माओं ने छोड़ दिया, குட்டிச்சாத்தான்கள் கைவிட்டது. 3 जो अशुद्ध आत्मा थे उन्होंने भी छोड़ दिया, மந்திரவாதியும் கைவிட்டார். जादू टोने वाले ने भी छोड़ दिया சர்வசக்தி படைத்த புருஷனும் கைவிட்டு और जो सर्वशक्ति मैं जो उसका पति था मैंने भी छोड़ दिया பேர் கைவிட்டார். और सारे लोग अगर छोड़ दे तो भी, கைவிடாத ஒருவர் இருக்கிறார். लेकिन न छोड़ने वाला एक है என்னிடத்தில் வருகிறார். और वो महान काम நான் பொறுத்து मैं किसी को भी ठुकराता नहीं हूँ, என்னிடத்தில் வருகிறார். जो कोई मेरे पास आता है யாரையும் நான் பொறுப்பே किसी को भी ठुकराता नहीं, दूर नहीं करता हूँ. வார்த்தை சொன்னவர் ऐसे बोलने वाला प्रभु என் மனைவி உண்மையாகவே मेरी पत्नी को सचमुच, சொந்த தெய்வமாய் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்ன जब मेरी மாத்திரம் पत्नी ने कहा मेरे परमेश्वर होकर मैं उसे कबूल करती हूँ, குணமாக்கினார். बीमारी को चंगा कर दिया போகும் பொழுது और जब जाते समय மரண பயத்தோடு போனவள் मृत्यु के डर से वो गई थी ऊपर, சந்தோஷமாய் குதித்துக் கொண்டு ஓடி இறங்கி लेकिन आनंद से कूदते हुए नीचे उतरी, வீட்டுக்குள்ளே வந்து சந்தோஷ பரவசம் அடைந்தார். घर के अंदर बहुत ही खुश हो गई, बहुत ही आनंदित हो गई. எந்த இடம் और कौन सा मेरा ரணமாகி புழு வைத்திருந்ததோ और जो स्थान पूरे कीड़े पड़े से सड़ गया சுத்தமாய் था, ஆறி वो போயிருந்தது. पूर्णता से सूख गया था யூரின் போனா और वो पेशाब के लिए गई. சர்வ சாதாரணமா யூரின் போயிடுச்சு. सर्वसाधारणता से उसे पेशाब होने வயிற்று வலி लगी இல்லை, और पेट का दर्द नहीं था, வேதனை இல்லை, दर्द नहीं था, மிகுந்த சந்தோஷம் बहुत அடைந்தார். ही वो खुश और आनंदित हो गई. அவருடைய காரியம் ஒன்றும் எனக்கு தெரியும். और ये सारी बात मुझे बिल्कुल मालूम नहीं थी. நாட்கள் கடந்தது. दिन बीत गए, वो दिन बीता தினம் தினம் பார்க்கும் और பொழுது हर दिन प्रत्येक दिन में देखता गया उसे. யாராவது வீட்டுக்குள்ளே வருவார்கள். वही तो मेरे घर पे आते थे வரவங்க பார்த்தா முக்காடு போட்டவங்க வெள்ளை புடவை கட்டினவங்களா இருப்பாங்க. और आने वाले देखा तो सारे जो है वो सर पर कपड़ा बांध कर यानी ओढ़नी लेकर या சில நேரத்துல நான் வீட்டுல இருக்கும்போது வருவாங்க. और कुछ जब मैं घर पे रहता था तब आते थे, வந்துட்டு உள்ளறையில போயிடுவாங்க. आते आते ही सीधा घर के अंदर जाते அங்க थे போய் அழுது அழுது ஜெபம் பண்ணுவாங்க. और वहां पर रो रो कर प्रार्थना करते थे. அவங்க அழுது ஜெபம் பண்ணுறது எப்படி இருக்குன்னா, और जब रो कर वे लोग प्रार्थना करते थे कैसा लगता இது था, அக்காவுக்கு சுகத்தை கொடு, ये वो प्रार्थना करते थे इस बहन को चंगाई இது दे, அம்மாவுக்கு சுகத்தை கொடு, इस माता जी को चंगाई दे, இப்படி ஜெபம் பண்ணுவாங்க. और ऐसा प्रार्थना करते थे, அழுவாங்க. रोते थे. எனக்கு அது எரிச்சலா இருக்கும். मुझे जलन आती थी वो. எவ்வளவு வராது, हाँ, எவ்வளவு अरे வராது, कौन कौन सा यहाँ पर आ रहा है, நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத अभी तक किसी हमने देखा ही நம்ம नहीं கண்ணிலே இது வரைக்கும் பட்டதில்லை. और मेरे आंखों में कभी इसका चेहरा दिखा ही नहीं. ऐसे लोग அந்த அளவு சிரிச்சுக்கிட்டு என்கிட்ட பேசினாலும் பரவாயில்ல, कम से कम आकर दांत दिखाकर हंसकर मेरे पास तो मिलना चाहिए, बात करना. உள்ள போய்கிட்டு அழுதுகிட்டு सीधे இருக்கிறாங்க. अंदर जाकर रोकर प्रार्थना कर रहे हैं. ஒரு நாள் எங்க மனைவி एक दिन मेरे पत्नी को मैंने बोला, யார் இவளுகெல்லாம் कौन है रे ये सब புதுசு புதுசா வராளுவோ, नए नए लोग कौन कौन सा मेरे घर में ஒப்பாரி வச்சு அழுகிற மாதிரி அழுகுறாளுவோ, और जैसे कि बाप मर गया ऐसा रो रहे हैं. உன் புருஷன் செத்தா போயிட்டேன் क्या तेरा पति में मर गया क्या मैं, அப்படி நான் கேட்டேன். ऐसा मैंने पूछा. அப்படி சொன்னா और मेरी पत्नी ने कहा, அவங்க எல்லாம் கிறிஸ்தவங்க, अरे वे लोग मसीह लोग हैं, எனக்காக ஜெபம் பண்ணதுக்கு मेरे வராங்க. लिए प्रार्थना करने के लिए वे लोग आते हैं. எதுக்காக உடனே ஜெபம் பண்ணிக்கு வராங்க? अरे क्या क्या क्यों क्यों तेरे लिए प्रार्थना करने आते हैं. அந்த ஜெபம் பண்ண விட வர ये வேண்டாம். सब प्रार्थना विता नहीं करना, आने वाले लोगों से बोल दे तू. உப்பாரி அடிச்சு தட்டிடுவேன். और बहुत ही ऐसा चप्पल लेकर भगाऊंगा उनको मैं. இப்படி நான் கேட்டேன். ऐसे मैंने बोला. என் மனைவி ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னா, मेरी पत्नी ने केवल एक ही बात बोली, செபிக்குது எனக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலா இருக்கு. वे लोग प्रार्थना करते थे मुझे जरा அது तसल्ली ஏங்க देती. நீங்க கெடுக்கிறீங்க? क्यों तुम उनको आप क्यों
भंग करते हो शांति को। எனக்கு உடனே ஒரு மாதிரியா இருந்துச்சு. मैंने कुछ अलग समझ என் लगा। மனைவி அப்படி பேசினது இல்ல. मेरी पत्नी कभी ऐसा बोलती ही नहीं थी। அல்ப வயசுல சாக போறவ. ठीक है, ये तो मरने ही वाली है थोड़े दिनों में। சரி அவளுக்கு இதுல ஒரு சமாதானம் ठीक है, இருக்கு. कम से कम उससे थोड़ी शांति मिलती है। ठीक है, जाने दो। நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னேன். मैं एक बात उससे बोला, என்ன கேடுனா கெட்டு போ. अरे क्या क्या तो क्या करना நான் है, இருந்து அவளையும் வரக்கூடாது. लेकिन जब मैं रहूंगा तब वे लोग यहाँ पर नहीं आना। பார்த்துக்கன்னு சொல்லிட்டேன். और ऐसा ये बात पर ध्यान देना, मैंने इतनी बात को उसको बताया। சொன்னாலும் ऐसा बोले तो भी நான் படுத்திருக்கும் போது எனக்கு யோசித்தேன். मैं जब सोता था मैं सोचता था, எனக்கு சகோதர சகோதரிகள் இருக்கு. मेरे भाई और बहन हैं, என் மனைவிக்கு சகோதர சகோதரிகள் இருக்காங்க. मेरे पत्नी के भाई और बहन हैं, எவ்வளவோ சொந்த பந்தங்கள். कितने सारे रिश्तेदार हैं। என் மனைவி இப்படி இருக்கப்போ இது சாக போற நிலையில இருக்கிறான்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். मेरी पत्नी ऐसी स्थिति है, मरने वाली है, सारे लोगों को पता எனக்கு नहीं, அதுதான் தெரியாது. और मेरे बारे में पता नहीं। ஆனா ஒருத்தர் கூட வந்து लेकिन एक जन भी आकर என் மனைவிக்கு ஆறுதல் சொன்னார். मेरी पत्नी को तसल्ली नहीं दिया। என் மனைவிக்கு அவர் பிரார்த்தனை பண்ணது. मेरी पत्नी के लिए किसी ने प्रार्थना नहीं என் की। மனைவிக்கு பயப்படாதுன்னு சொல்ல. मेरी पत्नी से किसी ने कहा नहीं है डर मत, ऐसा नहीं बोला। என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா? और क्या बोलते थे मालूम? நீயா தேர்ந்தெடுத்த வாழ்க்கை, अरे நீயா தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்ட வாழ்க்கை. अरे तूने ही चुना हुआ वही जीवन है। நாங்க அன்னைக்கே சொன்னோம் வேண்டாம். हमने तो पहले ही बोला था शादी मत करना। கேட்டியா? क्या सुना तूने?